जेनिल तेरा हुआ ऑर्डर? यस सर, कल हो रात गया को। हो गया। क्या डाला तू? WRO से ही हुआ ना फिर? हाँ, एप्लीकेशन नंबर डाला तो नहीं हो रहा था, नहीं हो WRS। रहा, WRO से। क्या बोल रहे हो? चलो, लेट्स कंटिन्यू। बिल्स ऑफ एक्सचेंज या रिवाइज BRBP, बिल्स पेबल। चलो बताओ मेरे को, एंट्री फॉर परचेजेस, राधिका। क्रेडिट, Purchase to draw. परचेज टू ड्रॉवर, एक्सेप्टेंस, you only. Drawer to PP. Drawer to bills payable. Drawer to bills payable का लॉजिक क्लियर है? व्हाट इज द लॉजिक ऑफ ड्रॉवर टू बिल्स पेबल? ड्रॉवर आपका क्रेडिटर था, राइट? क्रेडिटर आपका कम हुआ और बिल्स पेबल बढ़ गया। एक लाइबिलिटी कम हुआ, दूसरा लाइबिलिटी बढ़ गया। Priyal, tell me the dealing entry if the bill is sent to BFC or discounted or endorsed. uh, uh, Bank discount bills receivable. That was the drawer के books में। ड्रॉई के books में Roy के books में there'll be no entry. no entry. Okay, because draw is not bothered with where the bill is going, right? Draw is only bothered about either honor or dishonor of the bill. Whoever gets the bill, he is dealing with only two parties, either the drawer या फिर bills pay. Once the drawer is done, it is all bills pay. Okay, so remember that. Nikisha, tell me BP honored का entry, bills payable honored. Cash to bills receivable. Bills payable honored. Pay. Bills payable to cash. Bills payable to that. It's a liability you are paying off, right? We are doing entries in the books of draw E. Okay, acceptor के books में करते हैं. So BP to cash. What about Satvik, bills payable dishonored? Drawer to bill payable. Yeah, perfect. Drawer to bills payable, that is the acceptance entry. Bills payable to drawer. हाँ, तो bills payable to drawer. Payable घट गया और creditor को पैसा देना बढ़ गया. Bills payable to drawer, that is the dishonor. Kalrav, what is the dishonor entry with noting charges? Bills payable, noting charges. Bills payable, noting charges to drawer. Yeah, bills payable noting charges to drawer. What is the logic behind this? What is the logic of bills payable noting charges to drawer? Debit the expense because noting charges draw के लिए expense. Right? And why उसको credit? bill मिलेगा because dishonor हुआ है इसलिए. नहीं, वो तो ठीक है. बिल्स पेबल टू ड्रॉवर में क्या होता है? आपका लायबिलिटी बिल्स पेबल कम हुआ और क्रेडिटर बढ़ गया, बराबर. व्हाट इज द सेंस ऑफ नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर? नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर का मतलब क्या? नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस है तो डेबिट करना है. व्हाई टू क्रेडिट ड्रॉवर? He's giving the bill, no? No. We are supposed to pay him that much. Yeah, the liability increases. It's basically someone else paid our expense. Okay, if देखो हमने किया था expense के केस में rent है, we are paying rent, so rent to cash. We are paying rent on behalf of Ajay, so it is Ajay to cash, and Ajay is paying our rent. Ajay is paying our rent, so rent to Ajay हो जाता है. तो rent अपना expense है और Ajay is the creditor, उसको पैसा देना बाकी है.
नोटिंग चार्जेस मेरा एक्सपेंस है, वो किसने पे किया है? ड्रॉवर ने पे किया है। अभी रिटेन के केस में ड्रॉवर पे करता है, डिस्काउंटिंग के केस में ड्रॉवर पे करता है, बीएफसी के केस में भी ड्रॉवर पे करता है। खाली एंडोर्समेंट के केस में एंडोर्सी ने पे किया है, बट अगेन एंडोर्सी इज गोइंग टू वसूलोफाई फ्रॉम ड्रॉवर, एंड हम तो ड्रॉवर से ही डील कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो इनडायरेक्टली ड्रॉवर ने ही पे किया है। तो आप कोई भी केस में हो, आपका नोटिंग चार्जेस, अगर आप एक्सेप्टर हो तो आपका नोटिंग चार्जेस जो है वो ड्रॉवर ने पे किया है, बराबर है? आपका नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय ड्रॉवर, तो इट्स लाइक योर एक्सपेंस इज पेड बाय समवन एल्स। तो एक्सपेंस अपना है, डेबिट करो, लेकिन वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग, so no cash, it's payable to the party. So like outstanding expense, drawer liability बढ़ गई, पैसा देना बाकी है उसको. Okay, so remember that bills payable is a personal account, not real. Okay, bills receivable is real, bills payable is personal, traditional, और liabilities are personal. So remember that यहाँ पे bills payable घट गया, या फिर modern concept पे ही रह जाओ, traditional को लाने की जरूरत नहीं है, चलेगा. मॉडर्न कंसेप्ट में याद रखना, लाइबिलिटी है बिल्स पेबल घटा, क्रेडिटर बढ़ गया, वन लाइबिलिटी डिक्रीज, वन इंक्रीज, एंड एक्सपेंस पेड ऑन आर बिहाफ, तो इट इज एक्सपेंस टू पार्टी, देना बाकी है, लाइबिलिटी बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ गया. देन इट वाज बिल्स पेबल रिटायर्ड, रौनक, मिस्टर हीरो, what is the entry for bills payable retired? Retired. Cash. No. Bills payable, rebate to cash. Think. We are paying, right? We are paying. You pay. Bills payable to rebate to cash. Yeah. Bills payable to rebate to cash. If you are paying, obviously you will earn discount because you are paying before time, so you'll pay less. So that's your gain. So bills payable is a liability that is decreasing. So debit bills payable to cash is going out. The asset is decreasing. Credit asset कम हो गया, and discount is your gain. So income बढ़ गया, so that's your gain. So bills payable to rebate to cash. Then Virti, tell me the renewal का 4 steps. थोड़ा सा renewal का पूछा है. बीआर में बिल्स पेबल यार, कब से अच्छा. स्टोरी चालू है, रामायण खत्म हो गए राम को. ओके, तो पहले डिसऑनर का एंट्री आएगा. Tell me the dishonor entry both, BP dishonored with or without noting charges. अगर विदाउट नोटिंग चार्जेस है तो बीपी टू ड्रॉअर, और विद नोटिंग चार्जेस है तो बीपी ड्रॉअर, हाँ बीपी नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉअर. BP noting charges. फिर अगर पार्ट पेमेंट रिसीव किया तो ड्रॉअर टू कैश. पे किया हमने यहाँ पे ड्रॉवर टू. हाँ सॉरी, पे किया तो ड्रॉअर टू कैश. देन इंटरेस्ट पेएबल विल बी ड्रॉअर टू इंटरेस्ट. ड्रॉवर टू इंटरेस्ट. पेएबल हाँ, एंड पेएबल है, पेएबल इंटरेस्ट पेएबल है. पेएबल का एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, राइट? एक्सपेंस को डेबिट करो, टाइम आ गया, देना बाकी है, इसके लिए टू आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी बढ़ गई, तो इंटरेस्ट टू ड्रॉवर. उधर ड्रॉई टू इंटरेस्ट था, इधर इंटरेस्ट टू ड्रॉअर एंड न्यू बिल. new bill will be accepted. New will be accepted. So drawer to BP. ड्रॉवर टू बीपी. क्रेडिटर कम हो गया, बीपी बढ़ गया. BP drawer to ड्रॉवर टू बीपी. ड्रॉवर कम होएगा, क्रेडिटर कम होएगा और बीपी बढ़ जाएगा, बराबर है? Getting this? So remember this, Himangi Khona, 4 entries are clear. Then tell me the 2 entries for insolvency in case of drawee, Himangi. Sorry, so what? 2 entries for insolvency, bankruptcy of drawee, acceptor का bankruptcy होगा. First will be dishonor of the bill, Yeah. and second will What is the entry for dishonor with or without noting charges? with or without noting charges. So for all the it will be say for with without noting charges first I'll say. So it is bills payable to drawer, and with noting charges bills payable noting charges to drawer. Okay. And insolvency it will be drawer to cash to
It was deficiency. डेफिशिएंसी डिसोल्यूशन में करते थे, याद है, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी। जो लाइबिलिटीज हम लोग नहीं पे कर सकते वो सब कहाँ जाता है, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट किसके बुक्स में ओपन होता है, इट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ insolvent person who is an insolvent business or insolvent person whose liabilities are more than the asset. External liabilities are more than the asset. तो जो liability आप पे कर सके वो टू कैश, क्रेडिटर को पे किया, क्रेडिटर टू कैश, बीपी को चुकाया, बीपी टू कैश, लोन चुकाया, लोन टू कैश। जो ना चुका पाए वो सब लाइबिलिटी कहाँ जाएगी, कम पड़ी है ना, दैट गोज इन योर डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट में कुछ है नहीं एक्चुअली, डेफिशिएंसी अकाउंट इज खाली खम अकाउंट, जस्ट ओपन एज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। वो क्या इन्फो दिखाता है, जो डेफिशिएंसी में क्रेडिट साइड पे है वो आप पे नहीं कर पाए। बेसिकली मैं बीपी को 5,000 के जगह 4,000 पे किया तो 1,000 रुपीज विल गो अंडर डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी क्रेडिट होते जा रहा है बाय द अमाउंट्स व्हिच यू आर नॉट एबल टू पे अ पर्टिकुलर लायबिलिटी। आपको कोई लायबिलिटी में खाली रह गया, कोई पे नहीं कर पाए, वो सब डेफिसिट जाएगा आपका डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। एंड व्हाट विल बी ऑन द डेबिट साइड, डेबिट साइड पे वो पैसा होगा जो आप ला नहीं पाए आपके कैपिटल में। आपको कैपिटल में आपको लाना पड़ेगा ना घर से, तो आप पे कर पाओगे, तो आप ला नहीं पाए तो कैपिटल में बाय डेफिशिएंसी आता है और डेफिशिएंसी में टू कैपिटल आ जाता है। तो घर से ला पाते तो आप लायबिलिटी को चुका सकते थे, बट क्योंकि आप कंगाल हो गए, आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी खत्म हो गई, घर बार भी अटैच्ड हो गया, फिर भी आप पे नहीं कर पाए। ओके, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी, सिंस यू आर नॉट एबल टू गेट द मनी फ्रॉम होम, यू आर नॉट एबल टू पे ऑफ योर। ओके, तो बेसिकली डेफिशिएंसी अकाउंट ऐसा होता है, आपने बनाया भी है डिसोल्यूशन ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में, डेफिशिएंसी या इंसॉल्वेंसी अकाउंट। ओके, इसमें क्रेडिट में क्या दिखता है, द मनीज विच यू आर नॉट एबल टू पे। सपोज आई वाज नॉट एबल टू पे माय क्रेडिटर्स 10,000, so buy creditor 10,000. I was not able to pay my BP 5,000, so buy BP 5,000. Not able to pay my loans 10,000, loans 10,000. Or why you are not able to pay, because you are not able to get enough of money from your home. If you would have got it, entry would have been cash to capital, and then cash hota and then you could have paid it, but you haven't got it. Okay, so it is not cash to capital, it is deficient capital. The deficiency to capital कितना नहीं ला पाए, 25,000 नहीं ला पाए, ला पाते तो पे कर सकते। तो यहाँ पे क्या दिखता है, जो हम पे नहीं कर पाए, जो पे नहीं कर पाए, वो क्यों पे नहीं कर पाए, क्योंकि पैसा ला नहीं पाए, घर से पैसा ला नहीं पाए। ओके, यहाँ पे डेबिट में दिखता है द मनीज व्हिच यू आर नॉट एबल टू गेट, यहाँ पे दिखता है द मनीज व्हिच यू आर नॉट एबल टू पे ऑफ। इज दैट क्लियर? दैट्स योर डेफिशिएंसी अकाउंट। दोनों खाली है, ये ला नहीं पाया या पे नहीं कर पाया, कुछ हुआ नहीं है, करना था लेकिन कर नहीं पाया। दैट्स इंफॉर्मेशन यू शो इट अंडर डेफिशिएंसी। इट इज ओपन ओनली इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट बिजनेस। इज दैट क्लियर? डेफिशिएंसी का फंडा समझा? अच्छा, लास्ट एंट्री इंसॉल्वेंसी और बिल्स पेबल का, बाकी एंट्रीज क्लियर? किसी एंट्री का लॉजिक कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। बीआरबीपी की कोई भी एंट्रीज का लॉजिक, नोटिंग चार्जेस, इंटरेस्ट, रिबेट, डिस्काउंटिंग चार्जेस, बैंक फॉर कलेक्शन, एनीथिंग? बोलो बोलो बोलो। बताओ। All clear? All of you? Bills of exchange तगड़ा है एकदम। करें प्रॉब्लम्स? चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जनरल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, यू नो लास्ट एक पॉइंट रह गया था, जनरल एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। व्हाट इज जनरल एंड व्हाट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस? General accepting the bill as it is. Without any changes, without any changes, right? And with any changes है तो qualified. What type of changes are possible? Date, amount का Date, that is period, time period, amount, place का होता है, okay? Place का होता है, person का होता है, qualified with respect to so and so. तो इसका मतलब ये मत समझना कि conditional order, no.
बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज स्टिल एन अनकंडीशनल ऑर्डर. जो भी वो चेंजेस करता है वो ड्रॉवर के साथ कंसल्ट करके फिर करेगा. एक बार ड्रॉवर की रजामंदी है तो वो एक्सेप्ट करेगा और फिर उसके बाद वो कंडीशन डाल के साइन करेगा. इट इज स्टिल एन, मतलब एक बार कंडीशन डाल दी ड्रॉवर से कंसल्ट करके, उसके बाद देयर इज नो चेंज. इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर ओनली. उसको जो कंडीशन है वो फुलफिल करके पे करना पड़ेगा. तो कंडीशन में भी विद रिस्पेक्ट टू प्लेस, ये जगह पे पे करेगा, टाइम पीरियड इतने टाइम बाद पे करेगा, या अमाउंट कम या ज्यादा जो भी अमाउंट है उतने अमाउंट का वो एक्सेप्ट करेगा. तो आप लिखते थे टू पैरेलल लाइंस में, याद है, एक्सेप्टेड फॉर सो एंड सो रुपीज ओनली, एक्सेप्टेड फॉर सो एंड सो मंथ्स ओनली. ओके, दोज आर कंडीशन. That is qualified acceptance if the drawee includes any conditions in the bill, obviously with the consultation of drawer. Okay, without his consultation नहीं चलेगा, वो खुद का condition नहीं डाल सकता. That's your conditional acceptance or qualified, and the other one without any condition is general acceptance. Okay, let's start with the problems now. We take a simple problem. Starter के लिए छोटू सा लेते हैं. First problem. Sum number 1. First problem. दोनों के बुक्स में एंट्रीज करना है, विजय एंड प्रीतम. तो पहले हम लोग विजय या ड्रॉवर जो भी है पकड़ते हैं उसको. विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम. ये देख के स्ट्राइक होना चाहिए. अनुज देसाई, हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉई? Vijay is the drawer and Preetham is the drawee. विजय इज द ड्रॉवर एंड प्रीतम इज द ड्रॉई. तो विजय के बुक्स में पहले स्टार्ट कर देते हैं, साथ ही में करते जाओ. लेट्स स्टार्ट the books of Vijay. Short narrations you can write. Problem number 1. In the books of Vijay. The books of Vijay. Journal entries, dates है तो dates, and serial number है तो serial number. Max weightage of this chapter is 5 marks. Okay. Narration लिखना है sir. Narration लिखना है short में. Short narrations will write. 1st September 2016, 1916. Vijay sold goods to Preetham. Tirth, what entry we are supposed to pass? Sales. Entry. Vijay to Preetham to sales. ये ध्यान रखना है, विजय के बुक में विजय का नाम नहीं आना चाहिए. तो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, that is 1,06,000. Being goods sold to Preetham. Being goods sold to Preetham. Preetham immediately accepted a 3-month bill. Sakshi, what should be the entry? Immediately accepted a 3-month bill, मतलब same date होगा. Sakshi. Bills receivable to Preetham. Yes. Receivable account debit. Bills receivable account debit to Preetham account. Bills receivable account debit to Preetham account 1,06,000. Being we are accepted for 3 months. All right. Preetham, on the due date, Preetham requested that the bill gets renewed for a fresh period of 2 months. Yashvisha, what is happening to the bill? Draw is requesting for renewal. Renewal. So, कौन से डेट पे होगा ये renewal? Renewal due date, that is 2 months के लिए था ना, तो 3 months. तो फिर December. Yes. December 4th of December. 4th of December. Very good. 3 days of grace. Don't forget to add those. Yes. Entry. First entry for renewal. पहले dishonor. Preetham to bills receivable. Preetham to bills receivable. Retained bill था. Okay. यहाँ पे तो फर्क sorry retained ही था. ड्रॉअर के केस में, तो रिटेन का केस का एंट्री आएगा अपना एक्सेप्टर टू बीआर. प्रीतम टू बीआर. कुछ नोटिंग चार्जेस वगैरह नहीं है, कुछ नोटिंग नहीं हुआ है. प्रीतम टू बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ, आपका बीआर जो है एसेट कम हो गया और डेटर से पैसा लेना बढ़ गया 1,06,000.
एक एसेट कम हुआ, एक एसेट बढ़ गया. दिस इज बीइंग BR dishonored. Being BR dishonored. Shraddha, tell me the next step. What is happening? Vijay agrees to Interest. interest at 9% was immediately paid in cash. Interest was immediately paid in cash. 2 months. 2 months का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सो इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट वर्किंग नोट बना देता हूँ मैं यहाँ पे. 2 months 9%. Yes, on what amount? 1,06,000. 1,06,000. Yes. पार्ट पेमेंट में कुछ भी नहीं आ रहा है तो फुल बैलेंस है 1,06,000 का 9% फॉर 2 months. 2 months. होता है ये 1620 1620. Yes, sir. Check करो. 1590. 1590 is your amount, right? अच्छा, एंट्री बताओ ध्यान से अभी सोच के. प्रीतम टू इंटरेस्ट. ओके, प्रीतम टू इंटरेस्ट. और फिर इमीडिएटली इंटरेस्ट कैश में आ रहा है ना, तो कैश टू प्रीतम हो जाएगा. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? क्लब कर सकते हो ना. हाँ सर. इमीडिएटली रिसीवेबल और रिसीव्ड है. तो अगर न्यू बिल के साथ आ रहा है तो 2 सेपरेट एंट्रीज करो. कैश में आ रहा है तो ये तो बेटर रहेगा. तो कैश टू इंटरेस्ट. कैश टू इंटरेस्ट. ये एंट्री क्या किया मैंने समझा? प्रीतम टू इंटरेस्ट एंड कैश. अलग अलग भी दिखा सकते और अलग अलग नहीं दिखा सकते. प्रीतम टू इंटरेस्ट एंड कैश टू प्रीतम दिखा सकते हो. वो 12th में दिखाते थे क्योंकि दे यूज्ड टू फॉलो दैट फॉर्मेट. बट सीए में क्या है, अपना नॉर्मल लॉजिक अप्लाई करना है ना. इमीडिएटली आ रहा है तो क्लब करो. तो रिसीवेबल का दिखाने का जरूरत नहीं. और पेंडिंग रख रहे हो तो आउटस्टैंडिंग दिखा के करो. न्यू बिल के साथ आ रहा है तो कर सकते हो. इट्स नॉट रॉन्ग. बेटर इट इज क्लब करो. कैश में आ रहा है तो क्लब करना. रिसीवेबल न्यू बिल के साथ है तो चलेगा, पेंडिंग रखो. कैश टू इंटरेस्ट डायरेक्टली आई एम पासिंग, दैट इज 1590. दिस इज being interest received in cash. What is the next step now, Manan? Last step. New bill. What is the entry? Bill receivable to Pritham. Bills receivable account debit to Pritham account. It's receivable account debit to Pritham. Bills receivable to भी लिख सकते हो. Directly BR is also fine. Bills receivable to Pritham, that is what amount now? Will it be 1,06,000 plus interest or only 1,06,000? 1,06,000. 1,06,000. Because the interest component is already paid in cash. So obviously the new bill में वो वापस तो पे नहीं करने वाला है. वापस BR बढ़ा और डेटर घट गया. डेटर से लेना था 1,06,000 because he has already paid us the interest. So being bills receivable accepted by Pritham. And this इसमें was वैसा what. भी लिख सकते हैं ना, being Pritam's acceptance received. हाँ, Pritham's acceptance received. Yes, acceptance means bill, right? Pritham's acceptance received. Then second bill was met on the due date. Aryan, you only answer what will be the due date of this bill. Aryan Shah. 7th February. 7th February, perfect. 7th February 2017. And what entry will pass for this bill getting honored? Bank to bills receivable. Bank to bills receivable या cash bank लिख सकते हो. Nothing is specified तो cash bank. बैंक भी लिखा तो चलेगा. आगे सीए के अभी कोई भी चैप्टर में बैंक लिख दोगे डायरेक्टली तो वांदा नहीं. कैन यूज बैंक. खाली वो बेसिक्स के लिए वो कैश बुक से करते हो तभी कैश और चेक का ध्यान रखना. बाकी तो डायरेक्टली यू कैन राइट बैंक टू बी एवरीवेयर. झंझट ही नहीं कुछ. इधर भी बैंक ही कर देते हैं. बैंक account debit to bills receivable account. How much? So 1,06,000.
All right. This is being BR honored. Being BR honored. Fine. छोटा सा एक लेजर बना लो. In the books of Vijay, Pritam's account. You remember ना? Same normal post. अकाउंट भी बनाना है मतलब. प्रीतम अकाउंट या. दोनों का जर्नल बनाना है. जर्नल एंट्रीज प्रीतम के बुक में भी करना है. हाँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. पहले इसका लेजर कर लो एक प्रैक्टिस के लिए. पूछा नहीं है. Still do it. In the books of Vijay, just make Pritam account. विजय के बुक में प्रीतम अकाउंट बना लो. आपका लेजर जो है मोस्टली टैली होगा एक्सेप्ट फॉर इन वन केस. कौन सा पॉसिबिलिटी है जब आपका लेजर टैली नहीं होगा? परचेज सेल नहीं हो. परचेज सेल नहीं हो तो बैलेंस आ जाता है ना ओपनिंग. वो डिसऑनर होके खत्म होगा और एक बार समझो. हाँ तक ऑनर नहीं किया. हाँ, if the problem ends on dishonor. See, if the problem ends on renewal, that means he has given you the asset. So the debtor is settled. If the problem ends on honor, तो problem ही नहीं है, बिल आ चुका था. But if the problem ends on dishonor, not insolvency, just dishonor, that means again the pending amount is there from debtor. So that in that case you will have a closing balance. It won't tally. Even in case of insolvency, it will tally because it is bad debts. The debtor account is closed. Okay. Or even if the bill is not honored yet. वही हुआ ना, डिसऑनर. अच्छा, मतलब न्यू बिल एक्सेप्ट किया और ऑनर नहीं हुआ ऐसा? हाँ. नहीं, उसमें तो टैली हो जाएगा ना. बिल आया तभी टैली हो जाएगा. बिल एक्सेप्ट किया ना उसने. फिर ऑनर में तो कैश टू बीआर होता है. नाउ डेटर इज नो मोर योर एसेट. नाउ बीआर इज योर एसेट. वंस ही अकाउंट बनाना है ना. एक्सेप्ट्स द बिल, इट इज डन. हाँ बोलो. प्रीतम्स अकाउंट बनाना है ना. प्रीतम्स अकाउंट या. इन द बुक्स ऑफ विजय, प्रीतम्स अकाउंट. In the books of Vijay, Pritam's account. बाकी सब भी बन रहे हैं. Generally they ask only one person's account, that is debtor or creditor in case of drawer and drawee. प्रीतम के बुक में भी लेजर बनाना है. हाँ, प्रीतम के बुक में भी बनाएंगे ना. पहले जर्नल तो करें. बनाया, लेजर बनाया, हो गया. यहाँ पे हो रहा है टैली. 212,000. 212,000. You will have two sales, then you will have buy BR, then you will have 2 BR, then again buy BR. 2 sales, buy BR, 2 BR, buy BR. सेल्स किया तभी डेटर बना. बीआर आ गया तो सेटल हो गया. वापस डिसऑनर हुआ तो डेटर बना. वापस बीआर आ गया तो सेटल हो. बीआर इज योर एसेट. कीप दैट इन माइंड. Just like furniture, just like cash. You can sell it to the bank. All right. Next entries in the books of Pritam, same problem. Pritam is the debtor, drawee. So first entry क्या हो जाएगा? 1st September. Purchase entry हो जाएगा, right? Krishna, what should be the entry? Yeah, purchase to Vijay. Purchase to Vijay.
that should be 1,06,000. Purchase to Vijay is 1,06,000, being goods purchased from Vijay. Tanay, what is the second entry? Acceptance का entry क्या होगा तनय? Vijay to bills payable. विजय टू बिल्स पेबल. विजय टू बिल्स पेबल का लॉजिक क्या है? विजय अपना क्रेडिटर था, वो कम हो गया और सामने दूसरी लाइबिलिटी बढ़ गई. एक लाइबिलिटी कम हुई, दूसरी लाइबिलिटी बढ़ गई. लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट, बढ़ती है तो क्रेडिट. तो 1,06,000. Sir. 1,06,000. This is being bills payable accepted for 3 months. फिर होता है renew. Shanik, can you tell me what is the renewal का dishonor entry? Bills payable to Vijay. Bills payable to Vijay. इसको उल्टा कर देना है, back to zero. Dishonor हो गया मतलब वापस bills payable कम हो गया. Bills payable का जो liability था वो कम हो गया और creditor को पैसा देना बढ़ गया. तो creditor बढ़ गया, liability ये वाली बढ़ गई. तो एक लाइबिलिटी घटी, दूसरी बढ़ गई. बिल्स पेबल टू विजय 1,06,000. सेम डेट, सॉरी डेट है इसका 4 दिसंबर. हाँ बोल. सर अगर कैश और इंटरेस्ट अलग अलग एंट्री किया तो फिर अलग अमाउंट से लेजर टैली होगा ना? हाँ, अमाउंट चेंज हो जाएगा आपका. 1200 1590 का डिफरेंस. 1590 तो फिर चलेगा? हाँ चलेगा. लेजर का अमाउंट अलग आ रहा है ना, एंट्रीज तो तुमने बराबर पास किया. लेजर का टैलिंग अमाउंट विल बी डिफरेंट. दैट्स ओके. देन वी हैव बिल्स पेबल टू विजय, दैट इज डिसऑनर एंट्री. बीपी डिसऑनर्ड. बीपी डिसऑनर्ड. देन नेक्स्ट part is what? Interest. Again, Yash Patel, what will be the entry for interest? Here it is paid or received? Interest paid. क्या होगा entry? Interest to cash. Interest to Vijay or Vijay to cash? We are clubbing that because it is in cash, immediate payment. So interest to cash. Interest to cash. Interest to cash, that is same आएगा interest. ऊपर वाला check कर सकते हो 1590. अमाउंट्स पूरा सेम है, एंट्रीज पूरा मिरर इमेज हो जाता है यहाँ पे. बीइंग इंटरेस्ट पेड एंड देन द न्यू बिल शैल बी एक्सेप्टेड. रक्षित, व्हाट इज द एंट्री फॉर न्यू बिल एक्सेप्टेड? विजय टू बिल्स पेबल टू. विजय टू बिल्स पेबल टू लिखो या सिंपली बिल्स पेबल लिखो, वांदा नहीं. विजय टू बिल्स पेबल अकाउंट. अमाउंट कितना होगा रक्षित? 106,000. अच्छा, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कैश में पे किया. व्हाट इफ इंटरेस्ट कैश में पे नहीं किया होता? तो 1590 ऐड. तो 1590 न्यू बिल में ऐड हो जाता. परफेक्ट. दिस इज बीइंग बिल्स पेबल एक्सेप्टेड. Harsh, tell me the last entry. What is happening to this bill? Honor हो रहा है. Bills payable to cash bank. Bills payable to cash bank. Bills payable to cash bank. Liability कम हुआ और asset भी कम होगा क्योंकि पैसा दे दिया. बैंक लिख सकते हो डायरेक्टली. अमाउंट क्या होगा हर्ष? 1,06,000. 1,06,000 जो अपना बिल का अमाउंट है सेम. और डेट क्या होगा? दैट इज इम्पोर्टेंट. 7th of February 2017. 7th of February. Okay, 2 months plus 3 days of grace. Remember that. अच्छा, वैसे भी आपको अगर प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया है तो अज्यूम ऑनर डिसऑनर ऑलवेज हैपेंस ऑन द ड्यू डेट. ओके, ऑनर डिसऑनर ऑलवेज हैपेंस ऑन द ड्यू डेट. रिन्यूअल मतलब डिसऑनर, इट विल हैपन ऑन द ड्यू डेट. अच्छा, रिन्यूअल का जो नरेशन है ना, 1 मिनट उधर खाली लिखना बिल्स पेबल कैंसल्ड. ओके, डिसऑनर के जगह बेटर इफ यू राइट इट इज कैंसल्ड. डिसऑनर और कैंसलेशन में थोड़ा सा फर्क है, याद है किसी को? थियोरेटिकल डिफरेंस.
we are Dishonor में no new bill is created. cancelled. नहीं, क्रिएट कर सकते हो उसमें भी बात। कैंसल में मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था। कैंसल्ड में मतलब क्या होता है, ड्रॉई के रिक्वेस्ट पे हमने वो बिल को डिसऑनर किया। ओके, जेन्युइनली हम लोग पैसा लेने गए और ड्रॉई ने पैसा देने से मना कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर। एंड मर्जी से पहले ही रिक्वेस्ट की और हमने बिल को उड़ा दिया, दैट इज बिल कैंसल। ओके, बाकी एंट्री सब सेम है। नरेशन में रिन्यूअल के वक्त बेटर इफ यू राइट कैंसल्ड। ओके, है वो एक तरीके का डिसऑनर, बट मर्जी से किया है, उसने रिक्वेस्ट डाल के किया है। So we said bill got cancelled and the new bill was made. And बिना मर्जी के गए और पैसा देने से इनकार कर दिया, so that is dishonest. Simple as that. Okay. That narration का part है, not a big deal. Entries वो भी dishonor लिखा तो चलता है, 12th में तो वो भी लिखते थे, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अकाउंट बना लो फटाफट लेजर का। Make the ledger account. Buy purchase 2 BP, buy BP 2 BP. हो गया टैली? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, सम नंबर 2, सम नंबर 2 खुद से ट्राई करना है। अंकिता भाविका दोनों के बुक्स में इट्स अ स्मॉल प्रॉब्लम। आई थिंक 2 और 3 एंट्रीज, 1 2 3 एंट्रीज। तो इसमें अकाउंट बनाना है? नहीं, इसमें लेजर नहीं बनाना है। इन द बुक्स ऑफ अंकिता, इन द बुक्स ऑफ भाविका। अच्छा, रिटायरमेंट का लॉजिक क्लियर है? रिटायरमेंट का रिबेट कैसे कैलकुलेट करना है? जितना महीना बिफोर द ड्यू डेट उतना ज्यादा रिबेट। इज दैट क्लियर? रिबेट का मंथ्स आर नथिंग बट द मैकेनिकली सोचना है तो रिटायरमेंट डेट और ड्यू डेट का गैप, दैट इज द डिस्काउंट पीरियड। गॉट इट? रिबेट का पीरियड क्या होगा आपका? रिटायरमेंट डेट एंड ड्यू डेट का डिफरेंस, दैट इज रिबेट का पीरियड। ओके, जितना, क्योंकि लॉजिक
लॉजिकली सोचने का, 4 महीने का बिल है, 1 महीने बाद रिटायर हो रहा है, मतलब 3 महीना जल्दी दे दिया ना पैसा, तो 3 मंथ्स का रिबेट मिलेगा। सम नंबर कौन? सम नंबर 2। यस परीशी, यू हैड डाउट? नरेशन ना लिखे तो चलेगा अभी? शॉर्ट में लिख दो ना यार, 2 लाइन, 2-3 वर्ड्स का लिख दो। सिर्फ 3 ही एंट्री है ना? 3 entries, both the books. 3 entries. फर्स्ट मार्च बिल था 3 महीने का। So how many months rebate you will have? 1 month. 1 month. 1 month before the due date. अच्छा, और एक चीज ध्यान रखनी है, अगर इस केस में 1 मार्च को रिटायर हो रहा है, बराबर, अगर इसके जगह 4 मार्च भी दिया होता तो भी इट वुड हैव बीन 1 मंथ। 3 days ऑफ ग्रेस डोंट मैटर आगे पीछे। 1 मार्च की जगह 4 मार्च भी रिटायर होता, स्टिल इट वुड हैव बीन 1 मंथ। ओके, कोई ऑड नंबर ऑफ डेज है 20, 25, देन यू डिवाइड बाय 365, लीप ईयर है तो 366। प्रैक्टिकली तो सब नंबर ऑफ डेज में ही होता है, थियरी में आपको मंथ से राउंड ऑफ तो मंथ से कर सकते हैं। हो गया सबका? 3 entries, 3 entries. सर Yes. इधर अभी कुछ दिया नहीं है तो बैंक लिखना है ना रिबेट के लिए? बैंक आगे कहीं पे भी अगर कुछ नहीं दिया एक्सेप्ट फॉर दिस कैश बुक सम्स एंड ऑल बेसिक, सब जगह बैंक चलेगा। सर रिबेट अमाउंट क्या है सर? 5 lakh का 12%, 60,000 for 1 month, 5,000। 5,000 हाँ okay. 5,000, 4,95,000 मिलेगा। चलो डन।
Next, sum number 6. Asked to pass entries in the books of David. The books of David. Okay. सर एक ही में बनाना है, डेविड में बनाना ये इसमें खाली उसका दूसरे का नहीं बनाना, खाली डेविड का ही करना है. सर दो अलग बिल है तो दो अलग एंट्री आएगी. नहीं, you can club it ना, BR1 BR2 to accept. कर रहे हो ट्राई खुद से? साथ में करना है. एक कर लेते हैं, 2 बिल का है, फिर करना है साथ. Sum number 6. Mr. David draws 2 bills of exchange on 1116 for 6 and 10,000. David draws and are accepted by कौन है भैया? Thomas. So 1/1/2016 को 2 बिल ड्रॉ किया. अच्छा, डायरेक्टली ड्रॉ करने का मतलब क्या होगा? थॉमस कौन होगा? Troy. He is your debtor already. You have sold goods to him. There is a trade relation. Okay. So 2 balance BD. When you make the ledger, it will be 2 balance brought down. Date of the balance will be first date of the month. He is already your debtor for how much? 16,000. That's why we are drawing 2 bills, and that's why he's accepting 2 bills. So bills receivable account debit. Bills receivable 1 and 2 नाम दे सकते हो. Bills receivable 2 account debit. ये 2 bills है. To Thomas. That'll be 10, 6, 16. Okay. Being BR1 and 2 accepted. 10 and 6,000. The bill of exchange for 6,000 is for 2 months, and the bill of exchange for 10,000 is for 3 months. These bills are accepted by Thomas. And then on 4/3/2016, Mr. Thomas requests Mr. David to renew the first bill with interest at 18% per annum for a period of 2 months. David agrees to this proposal. So on 4th of March, this bill is getting renewed. Which bill? The first bill. So first bill is of 6,000. First bill is of 6,000. I'll just name it 6,000 and 10,000. The first bill is of 6,000. Second bill is of 10,000. First bill is getting renewed. So पहले तो dishonor हो गया. I think the bill was retained. तो entry रहेगा acceptor to Thomas to BR1. पहले तो dishonor entry है. और Yes. वो जो नीचे इंसॉल्वेंसी है उसमें डेट क्या देना है? Before the due date है ना? हाँ. So put a question mark. Dash. Leave it. Even if you don't write the date, it is fine. Before the due date है इसके लिए. कुछ नहीं दिया होता तो we would have assumed that it is happening on the due date. Okay. Honor, dishonor, insolvency on the due date. तो ये 6,000 rupees क्या है? तो BR1 dishonor. Cancelled rather. Cancelled. Renewal है इसके लिए. Then with interest. अच्छा, interest कौन से amount पे calculate होगा? Can you tell me? 6,000. 6,000 पूरा पेंडिंग है. पार्ट पेमेंट कुछ भी नहीं है. और इंटरेस्ट का एंट्री क्या करेगा अभी? थॉमस टू इंटरेस्ट. अभी रिसीवेबल बताओ और फिर न्यू बिल के साथ एक्सेप्ट करके इंटरेस्ट आ जाएगा. थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. Interest is calculated on 6,000, the entire balance amount at the rate of
18% for 2 months. 18% for 2 months. कितना आता है ये? 18 180. Yeah. 180 rupees is interest and that is coming with the new bill. Okay. So new bill accept कर लिया on the same date. So bills receivable 3 account लिख सकते हैं क्योंकि 1 और 2 हो चुका है. Bills receivable 3 to Thomas. That is, what will be the amount of this bill now? Add करके 6000 plus 180 क्योंकि इंटरेस्ट कैश में नहीं है, न्यू बिल के साथ है. 6180. This is BR3 accepted. BR3 accepted. Okay. What next we have is David agrees to this proposal on 20th March. Okay. 20th मार्च है इसका डेट. 4th को उसने रिक्वेस्ट डाला. काम सब हो रहा है 20th मार्च को. 20th मार्च इज योर रिन्यूअल डेट. अरे 20th मार्च तो नेक्स्ट वाले के लिए है ना. डेविड अग्रीज टू दिस. अरे रे रे बराबर है सर. नेक्स्ट वाला है. On 20th March, Mr. Thomas retires the acceptance for 10,000. The interest rebate or discount being 100. तो 20th March को उसने रिटायर कर दिया दूसरा वाला 10,000 का. तो एंट्री होगा अपना कैश बैंक के जगह डायरेक्टली कर बैंक रीबेट टू BR. इसमें थॉमस का अकाउंट बनाना है. हाँ, थॉमस का अकाउंट बनाना है. ये 10,000 है, rebate is 100, so you're getting 9,009. What is the difference between discount and rebate? I think I told you. Small difference between discount and rebate. What is it? Being BR2 retired. याद है? बोला था डिस्काउंट और rebate में छोटा सा फर्क है. What is the difference between discount and rebate, guys? Hello? Anyone? छोटा सा फर्क है. ओके, डिस्काउंट और रीबेट. रीबेट में बिल ऑनर हो जाता है, पर जब डिस्काउंट करते हैं तब बैंक से हमको पैसा मिलता है. ऑनर बाद में होता है. नहीं, वो ऑनर बाद में. अच्छा, वो डिस्काउंटिंग चार्जेस के लिए ऑनर बाद में होता है. इसलिए नहीं, नॉट दैट. रीबेट और डिस्काउंट में है ना, मेन फर्क क्या है? डिस्काउंट में है ना आपको काट के ही अमाउंट मिलेगा. जैसे डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के आपको नेट अमाउंट हाथ में मिलता है. रीबेट में है ना आपको पहले पूरा अमाउंट मिल जाता है, फिर आप रिटर्न करते हो. जैसे कैश बैक होता है ना, उसको रीबेट बोलते हैं. आपने पूरा पैसा दे दिया, उसके बाद आपको ड्रॉअर ने वापस रिफंड दे दिया, 100 200 300 जो भी है. ओके, दैट इज कॉल्ड रीबेट. एक्चुअली इधर डिस्काउंट ही रहता है, रीबेट बोलते हैं अपन. बट रीबेट का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि आपने पूरा पेमेंट कर दिया, फिर आपको रिटर्न आ गया पैसा. दैट इज रीबेट. एंड डिस्काउंट मतलब पहले ही काट के आपने नेट अमाउंट दे दिया. ड्यूटी ड्रॉबैक्स में ऐसा होता है, आप पूरा ड्यूटी पे कर देते हो, एक्स्ट्रा ड्यूटी वापस आता है, टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल. दैट इज रीबेट. देन व्हाट इज हैपनिंग टू दिस रिन्यूड बिल? रिन्यूड बिल के बारे में देखो दिया है बिफोर द ड्यू डेट. बिफोर द ड्यू डेट मतलब यू पुट अ डैश इन ड्यू डेट. ओके, कुछ नहीं दिया होता तो हम लोग ड्यू डेट पे कर लेते हैं कैलकुलेट करके, बट इधर बिफोर द ड्यू डेट दिया है. थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट, 50 पैसे रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. तो पहले तो ये बिल डिसऑनर हो गया. बिल नंबर 3 जो था वो भी रिटेंड ही था. तो थॉमस टू बिल्स रिसीवेबल 3 that was worth 6180. Okay, this is BR3 dishonored. BR3 dishonored. Okay, and then final settlement, that is bank bad debts to Thomas. Bank bad debts to BR मत लिख देना. BR is no more in existence now. BR is gone.
So we have to receive 6180, उसमें से आधा मतलब 3090 and 3090. This is 50 पैसे या 50% dues recovered as final settlement. 50% dues recovered as final settlement. थॉमस का अकाउंट बना लो. Any doubt in this? Sorted? The basics? It tallies on 28360. 28360. Very good. Yes. बिफोर द ड्यू डेट है तो डेट मत लिखना, पुट अ डैश और लीव इट, इट्स फाइन. और कुछ स्पेसिफाई नहीं किया डेट में तो हमेशा याद रखना, ऑनर, डिसऑनर, रिन्यूअल, इंसॉल्वेंसी, सब कुछ ड्यू डेट पे होता है, सब कुछ ड्यू डेट पे, नथिंग इज स्पेसिफाइड. अच्छा, ड्यू डेट अगर कोई पब्लिक हॉलिडे पे आ रहा है तो वी टेक प्रीसीडिंग डे. अनसर्टेन हॉलिडे पे आ रहा है तो succeeding day. Next day. What if it's a Sunday? Saturday, that is Preceding day. Okay. Sunday, bank holiday, public holiday, कोई भी holiday पे आ रहा है तो preceding day. And uncertain holiday है तो next day. बना लो थॉमस अकाउंट. थॉमस बोलो. डिस्काउंटिंग चार्जेस जो होता है ना, अगर 3 मंथ का बिल है और 1 महीने के बाद डिस्काउंट किया तो डिस्काउंटिंग चार्जेस 1 मंथ पे होता है कि 2 मंथ पे? 2 मंथ्स पे. उधर बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का, बैंक थॉमस अकाउंट में बैलेंस आएगा ना, टू बैलेंस बीडी आएगा पहले. 1 मिनट है ना, 16,000 का 16,000 का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी नॉट सीडी. ओपनिंग बैलेंस बिकॉज ही इज योर डेटर ऑलरेडी, और उसका डेट भी 1116, फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ. ये तुम्हारा थॉमस अकाउंट है ना, तो इसमें पहला आएगा टू बैलेंस बीडी. ये समझा टू बैलेंस बीडी क्यों आया? फोकट का तो बिल एक्सेप्ट नहीं करेगा वो. ही इज योर डेटर, राइट? दिस इज नॉट अकोमोडेशन बिल, दिस इज योर डेटर. सो टू बैलेंस बीडी 16, फिर आएगा बाय BR1, बाय BR2 and so on. This is 6,000 and this is 10,000 and so on and so forth. Is that clear? सेल्स एंट्री नहीं है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बिकॉज इज योर डेटर. वैसे ही परचेज एंट्री नहीं है तो उधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बिकॉज इज योर क्रेडिटर. दैट बैलेंस डेट विल बी द फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ 1116. नमन, डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसा है? 3 महीने का बिल है ना और तुमने 1 महीने बाद डिस्काउंट करवाया, बराबर? तो बैंक तुमको अभी पैसा दे रहा है, बैंक को कितने टाइम बाद मिलेगा? 2 महीने बाद मिलेगा ना. तो बैंक 2 महीने का ब्याज काट लेगा, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का. तो 2 मंथ्स का डिस्काउंट. 4 महीने का बिल है, 3 महीने बाद डिस्काउंट करवा रहे हो, तो बैंक विल डिडक्ट डिस्काउंट फॉर जस्ट 1 मंथ बिकॉज बैंक विल गेट द मनी विद अ मंथ. तो एक ही महीने का काटेगा. सबका है ना फॉर्मूला एक्चुअली डिस्काउंट का सेम ही है. इट इज द डेट दैट इज सपोज रिटायर हुआ तो डेट ऑफ रिटायरमेंट टू ड्यू डेट. डिस्काउंट हुआ तो डेट ऑफ डिस्काउंट टू ड्यू डेट. जो भी तुम्हारा रिन्यूअल हो रहा है तो डेट ऑफ रिन्यूअल टू ड्यू डेट. जो भी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है वहां से ड्यू डेट, दैट इज द पीरियड ऑफ डिस्काउंट और इंटरेस्ट और रिबेट. हुआ टैली? थॉमस भैया हुआ? थॉमस कुक बैंकरप्ट हो गया बेचारा. टैलीड नाउ. करो चलो ये वाला 7. 1 मिनट 7 just a second.
हाँ 7th करो, चलो 7th. Journal entries with narration in the books of Siriman. Sum number 7. सिरिमन के बुक्स में करना है. सिरिमन, सिमरन भी नहीं है, श्रीमान भी नहीं है, सिरिमन. सिरिमन. रीटा ओ टू सिरिमन. मतलब सिरिमन कौन हुआ? ड्रॉवर की ड्रॉइंग है. ड्रॉवर. रीटा ओ टू सिरिमन मतलब रीटा हैज टू पे टू सिरिमन. रीटा इज द डेटर एंड सिरिमन इज द क्रेडिटर. क्रेडिटर इज द ड्रॉवर. सो वी आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ सिरिमन. सिरिमन मतलब ड्रॉवर. यार मत कर देना, इधर डबल चेक करना कि ये एक चीज खत्म उल्टा तो गया, पूरा एंट्रीज राइट रहेगा लेकिन 0 बीआर का बीपी हो जाएगा. डेट नहीं दिया, बिफोर ड्यू डेट दिया है तो कोई भी डैश कर दो ना. डैश डैश डैश. गलती से लिख दिया ड्यू डेट तो भी टेंशन मत लेना, कटवट मत कर देना, चलेगा. बिफोर द ड्यू डेट होता है तो यू पुट अ डैश. ऑन द ड्यू डेट या कुछ नहीं दिया तो ड्यू डेट. ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, आगे पीछे 1-2 दिन पहले हुआ है वो. अभी इधर भी इंटरेस्ट इज कमिंग अलोंग विद पार्ट पेमेंट. ओके, यू कैन क्लब दोस 2 एंट्रीज. डेट कौन सा लिखने का है बिफोर ड्यू डेट? मतलब रिन्यूअल की चारों एंट्री में डैश आएगा ना? चारों एंट्री में डैश. अगली उसके बाद की भी सब एंट्री में डैश हो जाएगा. सर जब ये रिन्यूअल होगा तो अभी 99,000 का अमाउंट आएगा कि 1 लाख? तुम बोलो मेरे को 1 लाख का बिल था, तुमने 99 में डिस्काउंट करवाया ना, तो 1000 रुपया क्या हुआ? डिस्काउंट. तो एंट्री क्या होगा? हाथ में मिला 99 ना तुमको. बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर. यू सोल्ड द बिल टू द बैंक. कैंसलेशन होगा तो 99,000 का ही होगा. नहीं भाई, बिल अमाउंट फुल 1 लाख ना? 1 लाख. कैंसलेशन 1 लाख. डिसऑनर के वक्त तो 1 लाख. डिसऑनर का एंट्री आएगा रीटा टू बैंक ना? रीटा टू बैंक, yes, acceptor to bank, discounted bill dishonored. Rita to bank, discounted bill dishonored, and amount should be 1 lakh. ऐसा मतलब अपने को 99 मिला है तो बैंक वापस 99 लेगा? नो, बैंक विल वसूल ऑफ पूरा 1 लाख, क्योंकि उसको डेटर से 1 लाख लेना था, वो अपने से लेगा. अभी एक्सेप्टर टू बैंक 1 लाख करते थे ना अभी बीआरएस में भी. डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, बैंक पूरा पैसा काट लेता है, चार्जेस से तो ऊपर और काट लेता है. और अकाउंट बनाना है कोई? हो गया तुम्हारा जर्नल? हाँ. मांगी इज ऑन द एक्सट्रीम्स. या तो इंटरेस्ट 6000 है ना? रात को 12 बजे होमवर्क आता है. इंटरेस्ट 6000. 6000 आई डोंट नो. 1,500 आ रहा है करने का ना 50. 3 months. 3 months के लिए. 50,000 पे 12% फॉर 3 months, 1,500. 50,000 पे 12% फॉर 3 months. और
पार्ट पेमेंट का एंट्री क्या होगा आपका? इट विल बी कैश टू रीटा टू इंटरेस्ट, दैट यू कैन क्लब बिकॉज दोनों साथ में हो रहा है, इंटरेस्ट और पार्ट पेमेंट. गॉट इट? कैश टू रीटा टू इंटरेस्ट, कैश टू रीटा टू इंटरेस्ट. रीटा में 50,000, इंटरेस्ट में 1500, कैश में 51,500. कैश टू रीटा, बैंक टू रीटा टू इंटरेस्ट, व्हाटएवर, बैंक टू इंटरेस्ट, बैंक टू रीटा टू इंटरेस्ट. 51,500, 50,000 एंड 15,000. या लेजर बनाना है, इसमें भी बनाओ मांगी. सर नया बिल BR2 रीटा ही होगा या बैंक का कुछ होगा उसमें? नया बिल, सेकंड बिल. हाँ सेकंड बिल तो बिल्स रिसीवेबल टू रीटा ना. हाँ ठीक है. एक्सेप्टेंस एंट्री तो BR टू रीटा ही है. अमाउंट 50,000 ही हाँ, आएगा नया बिल का. नया बिल का अमाउंट 50,000, यस, क्योंकि इंटरेस्ट हैज ऑलरेडी बीन पेड इन कैश. अगर इंटरेस्ट न्यू बिल में आता, पार्ट पेमेंट में नहीं आता, तो फिर ऐड करते हैं न्यू बिल में, जैसे कि ये सब में किया 6186. नया बिल अमाउंट ड्यू डेट आएगा ना नया बिल? न्यू नया बिल में डेट आएगा? नहीं, कैसा आएगा? चारों रिन्यूअल में डैश है ना यार, वो रिन्यूअल ही तो फिर बिफोर द इसमें ड्यू. इंटरेस्ट का एंट्री तो वो आता है ना, रीटा टू इंटरेस्ट. अरे वो रीटा टू इंटरेस्ट रिसीवेबल का है ना, हाँ और फिर उसने इमीडिएटली पैसा भी दे दिया, पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट दे दिया है ना. अलग अलग करते तो क्या आता? रीटा टू इंटरेस्ट और कैश टू रीटा, रीटा टू इंटरेस्ट 1500 और कैश टू रीटा आता 51,500, है ना, क्योंकि यहाँ पे इज पेइंग 50,000 ऑफ बिल प्लस 1500 ऑफ इंटरेस्ट, राइट? समझा? इधर हमने रिसीवेबल बताया है, इंटरेस्ट रिसीवेबल. अमाउंट में फर्क आ जाएगा ना अगर ऐसे करेंगे. टैलिंग अमाउंट में 1500 का फर्क आएगा, बट बेटर इज टू डू कंबाइंड एंट्री ओवर हियर बिकॉज इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इमीडिएटली. तो कैश टू इंटरेस्ट टू रीटा मारो, वो बेटर है. जब इमीडिएटली आता है ना तब क्लब करके मारो, जब न्यू बिल के साथ आ रहा है तो अलग अलग मारो. लेजर में फर्क आ जाएगा 1500 का टैलिंग का, दैट्स फाइन. लास्ट में भी उसका भी डेट नहीं आएगा ना? नहीं आएगा ना, रिन्यूअल से Solvency का? सब डेट, रिन्यूअल से सब डेट डैश, क्योंकि रिन्यूअल का जो फोर्थ एंट्री वो एक्सेप्टेंस का डेट है ना, वही डैश है, तो वहां से ड्यू डेट मिलेगा कैसे? सब डैश. सर हो गया. लेजर भी हो गया, आराम करो. सर वर्किंग नोट जर्नल में दिखाया तो चलेगा? इंटरेस्ट का ना, इंटरेस्ट का एक छोटा वर्किंग नोट ठीक है. इंटरेस्ट जर्नल के अंदर चलेगा ना? हाँ हाँ, जर्नल के अंदर वो नरेशन के उधर यू कैन शो इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है,